integral made for purposely finding area of given curve under the given limit. For example, let me give definition first. Integral a to b f of x into dx, that is equal to, now suppose after doing integrand function we are getting this integration f of x. Okay, now this is a is called the lower limit and b is called the upper limit. Now we used to present like this a to b. Now that is equal to, हमेशा लिमिट क्या होता है बेटा, अपर माइनस लोअर, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस क्या करते हैं एफ ऑफ ए. दिस ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट, ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट and b is called upper limit, b is called upper limit. Beta science students, today onwards your teacher will start practical physics, chemistry, bio and which one even including home science. They will start practical. They will show you experiment through your lab only. So then you have to start write in your practical files. You have to complete your practical files as per experiment whatever they are showing. Now CBSE have reduced the number of practical, you know about it. So today onwards your practical will begin. Okay, now listen, this a is called lower limit and b is called upper limit. Now after doing integration we are getting f of x, that is a to b. So upper minus क्या करते हैं, always lower करते हैं. For example, let me take some example questions. Suppose integral 1 to 2 that is 1 upon x plus 1 into dx. ये आ गया बेटा. So 1 upon x plus 1 into dx डिग्री 1 है, so that is equal to, we can write log क्या लिख सकते हैं 1 plus 6. Now लिमिट अप्लाई करोगे 1 to 1 क्या हो जाएगा 2. Now that is equal to, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं बच्चे, log क्या हो जाएगा 1 plus 2 and then minus लोअर लिमिट log क्या हो जाएगा 1 plus 1. Now यहाँ पे प्लस सी नहीं करते, दिस इज लिमिट गिवन है बेटा. सो वी आर फाइंडिंग एग्जैक्ट स्लोप ऑफ गिवन कर्व. सो ज़रूरत ही नहीं है, मतलब एरिया निकाल रहे हैं, सो ज़रूरत ही नहीं है प्लस सी करने की. सो ये आ जाएगा log 3 माइनस क्या हो जाएगा log 2. अदरवाइज यू कैन सिंप्लीफाई log 3 upon 2. दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ सी, सपोज द क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 to pi by 2 देन sin 2x into dx आ गया. इन केस now what is the integration of sin 2x, आपको पता है minus cos 2x the whole upon, it is so simple better. Whatever you have seen indefinite integral, same you are seeing here along with limits. So that is limits given 0 to pi by 2. Now that is equal to upper limit, so minus 1 by 2 take out, first upper limit minus lower limit. So that is a cos into 2 into pi by 2. So cos pi minus माइनस क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, ये माइनस बाहर रखी हूँ 1 upon 2 भी बाहर ले लिया, अपर लिमिट रखा है pi by 2, 2 2 कैंसिल, cos pi आ जाएगा. लोअर लिमिट रखूंगी that is cos 0. Now cos 180 cos 90 plus 90 that is sin 90 minus sin 90 minus 1 हो जाएगा. So that is equal to minus 1 upon 2 into once again cos 180 वैल्यू क्या बताया minus 1, cos 90 plus 90 minus sin 90 that becomes minus 1 and cos 0 minus 1. So that is equal to minus 1 upon 2 into minus 2, that is equal to 1. You will get answer. Are you clear? Suppose if the question is integral 0 to pi by 4 or otherwise pi by 2. Okay. So sin square x into or otherwise let me take cos square x into dx. ये आ गया बेटा. So how to integrate? That's I told you, whatever you have seen in this which one indefinite integral, same cos square we don't have integration. So integral 0 to pi by 2, go for formula, that is 1 plus cos 2x the whole upon 2 into dx. Now that is equal to, this can be integrated, I equal to 1 upon 2 into x हो जाएगा और प्लस 1 upon 2 into cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x upon 2. नाउ लिमिट अप्लाई करोगे 0 to pi by 2. नाउ I equal to, that is यहाँ पे अप्लाई करूँ 1 upon 2 into अपर लिमिट हो जाएगा pi by 2 माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा 0 प्लस 1 upon 4 into ये हो जाएगा 1 upon 4 अपर लिमिट हो जाएगा sin pi माइनस क्या हो जाएगा बच्चे sin 0. sin 0 becomes 0 हो जाएगा, sin 180 sin 90 plus 90 becomes cos 90 becomes 0, ये एंटायर पार्ट 0 हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 5/4. Suppose if the question comes like this, integral 0 to pi suppose sec square x or otherwise tan square x into dx आ गया, tan square x into dx. tan square का we don't have integration,
So what we have to do? 0 to pi. That's I told you, whatever we have seen indefinite integral, same concept we are seeing, just limit apply कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है बेटा. sec square का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? tan pi and then माइनस क्या हो जाएगा? x. अब लिमिट अप्लाई करो 0 to pi. अपर लिमिट रखूंगी, सॉरी tan x. अपर लिमिट रखूंगी tan pi minus pi and then minus lower limit tan 0 minus 0. Now tan 180, tan 90 plus 90 becomes minus cot 90 becomes 0 हो जाएगा. So ये आ जाएगा आपका minus of pi हो जाएगा बेटा. tan 0 0, this also 0. Your final answer is minus pi. Are you clear बच्चे? Definite integral, what is definite integral and how to integrate? समझ आए बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. I will send you know about your marks. I will send it through SMS today. Okay, you have to see your marks, how much you have secured and what mistake you have done. Yesterday I have seen some student are giving message, has given message, this question is wrong, that yeah, if it is wrong then you will get full marks. That was not wrong. Answer has given pi by 3, even then you are writing, and immediately remaining students also start writing, yes, that was wrong, that was wrong. What is the nonsense beta? You keep patience. Don't create mess. I hope so. You have seen new education policy. Everybody has seen new education policy. That is very good time for you. Okay, anyhow you have lost this year, but you have very good bright future. You know about what is new education policy in college. Even if you want to quit, that is second year, you will get some diplomatic, that means credit. Your academic education certificate you will get, that means you have completed 2 years, like they will award, that is a diploma. Suppose further if you want to continue same education after 2 years, then third year से आपको continue करोगे. So new education policy you go through engineering, either engineering, even research they are saying they will include social science also. Okay, so you have to go through each and everything, what is new education policy. So get it a benefit. What subject you can opt, even science students can take social education. Now social studies, now they are saying foreign education, foreign countries will set here universities in India so that we can do exchange program. So you have to go through each and everything better. I will send video clip to you. Have you written? No, ma'am. Write fast. Write fast, which after that take it 7.9. I hope so 7.8 is not in syllabus beta. They have deleted, I think, limit of ASM. Even then, let me go through. First I will complete 7.9, 7.10. These are all the exercises, then we will come back. Okay, take page number 338, exercise 7.9. So whatever I have given homework previously, that's you have to complete, and today you see what I am giving homework. Shall I raise better? Yes? Yes, ma'am. Yes. Now take the exercise better 7.9.
Now see beta 7.9 question number 1. Question number 1 simple integration x square by 2 plus x then upper minus lower you have to do. Question number 2 1 by x का integration log x then upper minus lower. And then question number 3 these are all 1 mark question beta. Simple polynomial given है, simple formula use करना है. पहला पार्ट 4x 4 by 4 minus 5x cube by 3 and then plus x square by 2 plus 9x upper minus lower. Sin 2x का integration minus cos 2x upon 2 then again upper minus lower. Question number 6 you have to do homework cos 2x that is sin 2x upon 2 upper minus lower. Question number 6 e power x का integration e power x upper minus lower करोगे e power 5 minus e power 4 आंसर आ जाएगा. tan x का integration either we can write minus log cos x otherwise log sec x then again upper minus lower. क्वेश्चन नंबर 8 कोसेक का इंटीग्रेशन क्या है, log कोसेक x माइनस कॉट x. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 देखना, इंटीग्रल क्या करेगा, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन है बेटा, आप लोग कर सकते हो. 5/6 to 5/4 क्या दे रखा है, कोसेक x into dx दे रखा है. दैट इज इंटीग्रेशन क्या है, log कोसेक x माइनस क्या हो जाएगा कॉट x और लिमिट गिवन है आपका 5/6 to 5/4. सो अपर माइनस लोअर आई इक्वल टू अपर करूँगी log कोसेक 5/4 एंड देन माइनस कॉट 5/4 and then minus log upper limit lower limit रखूँ कोसेक 5/6 and then minus cot 5/6. okay fine. now that is equal to log कोसेक √2 minus cot 5/4 how much 1 minus log कोसेक 36 how much sorry बेटा 30 कितनी है, कोसेक 30 कितनी है बेटा 2/√3 कोसेक 32. यस बच्चे बेटा व्हाट इज दिस इज अपर लिमिट माइनस क्या किया लोअर लिमिट. कोसेक 30 कितनी है 2, कॉट 30 कितनी है बेटा 2/√3. बेटा साइन 30 कितनी है, कोसेक साइन 30 नंबर बेटा कोसेक 30 क्या होगा 2 होगा. 2 नाउ कॉट 30 साइन 30 होता है 1/√3, कॉट 30 होगा √3. बट √3 आंसर बताओ. m/n फॉर्मूला यू कैन यूज. बच्चे ये है ना बोर्ड में आपका प्रॉपर आंसर देने पड़ेगा. डिनोमिनेटर में अंडर रूट अलाउड नहीं है, सो आपको रेशनलाइज करने पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट 1 मार्क. दैट्स गिवन योर माइंड. नाउ दैट इज इक्वल टू रेशनलाइज कर लिया वेरी इमीडिएट. लॉग ऑफ परफेक्ट आंसर देने पड़ेगा आपका √2 - 1, इसको भी ओपन करने पड़ेगा. 2√2 प्लस √2 इंटू √3 √6 and then -2 and then -√3 the whole upon ये हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा 3. सो ये -1 होगा तो -1 हो जाएगा, चेंज कर देना. सो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 and then -2 √2 and then -√6. दिस इज योर परफेक्ट आंसर. दैट्स कीप योर माइंड. सो डिनोमिनेटर में अंडर रूट मत रखना, उसको रेशनलाइज करके हटाना. इसी तरह आपको क्वेश्चन करना है बेटा. क्वेश्चन नंबर 9 देखना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर साइन इनवर्स एक्स होगा, अपर माइनस लोअर कर देना. क्वेश्चन नंबर 10 tan इनवर्स एक्स अपर माइनस लोअर. क्वेश्चन नंबर 11 आपका फॉर्मूला पता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. 11 को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंटीग्रल आपका लिमिट दे रखा है 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. फॉर्मूला है बेटा 1/2 ये लॉग क्या था x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला था. अब लिमिट अप्लाई करोगे 2 to 3. सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूँ i इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग. सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं 3 - 1 दैट इज 2 अपॉन क्या हो जाएगा 4 माइनस लोअर लिमिट लॉग. लोअर लिमिट रखूँ 2 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3. नाउ इसको भी log m माइनस ये 1/2 कॉमन फॉर बोथ टर्म. log m/n करना है, ये 1/2 हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू 1/2 log m/n करूँ. सो 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. दिस इज योर परफेक्ट आंसर. आर यू क्लियर? नाउ सी बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी आई हैव डन. साइंस को कॉस स्क्वायर कराया 1 + cos 2x अपॉन 2 करके करोगे. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13 आप कर लेना. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करो, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14 मैं कर देती हूँ बेटा. इंटीग्रल 0 to 1 2x + 3 द होल अपॉन क्या दे रखा है 5x² + 1 इंटू. दीज आर ऑल यू हैव सीन इन इंडेफिनिट इंटीग्रल इवन देन आई एम डूइंग. सो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैन यू रिमेंबर?
0 to 1 वी कैन स्प्लिट इट आइदर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लंबा पड़ेगा बेटा, बेटर आप स्प्लिट करो क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। सो 5x² प्लस 1 इंटू डी एक्स एक पार्ट करो, इंटीग्रल 0 to 1 3/5x² प्लस 1 इंटू डी एक्स एक पार्ट करो। अब इसको I1 प्लस I2 करके अलग अलग करके करना हो तो बेशक कर लो, वो आपका चॉइस। I इक्वल टू नाउ I1 आई एम टेकिंग इंटीग्रल 0 to 1 2x अपॉन क्या दे रखा बेटा 5x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। ऑफकोर्स इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो सब्सटीट्यूशन दूंगी, तो 5x² प्लस 1 इक्वल टू t। वंस सब्सटीट्यूशन दोगे यू हैव टू चेंज द लिमिट आल्सो। लिमिट कैसे चेंज करते हैं, ये जो वैल्यू दे रखा है वो x का वैल्यू है बेटा। When x tends to 0 लिमिट पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 10x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। सो हमें सिर्फ x इंटू डी एक्स चाहिए, तो सो दैट इज इक्वल टू dt बाई 10 हो जाएगा। पहले ये पार्ट हो गया और हमने सब्सटीट्यूशन दे दिया। अब ये जो है हमने इंटीग्रेंट फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ t में कंप्लीट चेंज कर दिया, लेकिन ये जो लिमिट है वो x का है। सो इंटीग्रेंट फंक्शन t हो तो लिमिट भी किस में आना चाहिए, t में आना चाहिए। कैसे लिमिट चेंज करते हैं, When x tends to 0, यहाँ पे रखो 0 रखो, 5 इंटू 0 0 प्लस 1 इम्प्लाइज से t टेंड्स टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा बेटा। When x tends to अपर लिमिट 1, यहाँ पे 1 रखी हो, जो सब्सटीट्यूशन दिया वहाँ रखो, 5 प्लस 1 इम्प्लाइज t टेंड्स टू क्या आ रहा है आपके पास 6। Now I1 इक्वल टू, सो वी आर गेटिंग इंटीग्रल, लोअर लिमिट 1 था, अपर लिमिट 6, मैंने कंप्लीट फंक्शन को चेंज कर दिया। अभी इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। सो ये आ जाएगा dt बाई 10, सो 1/10 आगे ले लेती है, 1/10 इंटू dt अपॉन, सो क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 1/10 इंटू log t हो जाएगा। log t लिमिट दे रखा है आपके पास 1 to 6। सो I1 फाइनली क्या आ रहा है बेटा, I1 इक्वल टू 1/10 इंटू लॉग क्या आ जाएगा 6 माइनस log 1, बच्चे log 1 का वैल्यू 0 आ जाता है, सो दैट इज इक्वल टू 1/10 इंटू क्या आ रहा है आपके पास log 6, ये आ गया I1। ओके फाइन, नाउ I2 ले लेते हैं। I2 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 3 इंटू डी एक्स अपॉन, एक काम करना बेटा, इसमें 5 को बाहर निकालना, x² प्लस a² फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा। सो डू वन थिंग, 1/5 को बाहर निकाल देती हूँ, 3 भी न्यूमरेटर वो भी बाहर निकालो। सो 0 to 1 dx अपॉन इसको x², ये हो जाएगा 1/5, 1/5 को 1/√5 का होल स्क्वायर कर देना, सो दैट यू गेट फॉर्मूला x² प्लस a²। नाउ I2 इक्वल टू, अब फॉर्मूला यूज कर रही हूँ 3/5, फॉर्मूला क्या है बेटा 1/x² प्लस a² का 1/a tan इनवर्स x बाई a, दैट इज x अपॉन 1/√5, लिमिट था 0 to 1, बहुत ध्यान से करने पड़ेगा। इसको √5 इंटू √5 करो, नहीं ये तो ऊपर लेके जाओ, 3√5 अपॉन 5 tan इनवर्स, ये आ जाएगा 5√5 ऊपर जाएगा बेटा, एक तो √5 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 हो जाएगा, ये एसिड रहेगा। सो 3√5 अपॉन 5 tan इनवर्स क्या रहेगा √5, ये आ गया आपके पास I2। सो I इक्वल टू क्या था I1 प्लस I2, I1 आया 1/10 log 6 एंड देन प्लस I2 आया आपका 3√5 अपॉन 5 tan इनवर्स क्या आ गया √5। बच्चे समझ आए बच्चे, से यस नो? यस मैम, यस यस मैम। मैडम, मैम आपने 1/√5 क्यों लिखा है? कहाँ पे है बेटा, ये I2 में। I2 में ये वाला, ये पूछ रहे हो? यस मैम। बेटा फॉर्मूला क्या है 1/x² यहाँ पे बता रही इंटीग्रल dx अपॉन x² प्लस a², फॉर्मूला क्या है बेटा दैट इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a, यही है ना फॉर्मूला, यही है ना फॉर्मूला, ठीक है। यस मैम। क्या है यहाँ पे 1/√5, वही लिखा है बेटा 1/a, a क्या है 1/√5 वो लिखा है। नहीं मैम आपने 1 को 1/√5 क्यों लिखा है? 1 को मैम 1/√5 आया ही कहाँ से है? बच्चे मैंने इधर देखो, आप डायरेक्ट इसको √5 का √5x का होल स्क्वायर करना है कर लो। मैंने क्या किया, ये 5 को बाहर निकाला बच्चे, ये रहा ना 5, I2 लिया, I2 ये रहा ना बेटा, I2 ये रहा, यहाँ देखो बच्चे I2 ये रहा, ये फॉर्मेट लेकर ये 5 को बाहर निकाला, ये हो गया x² प्लस 1/5 हो गया।
बट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए, इसलिए 1/√5 को होल स्क्वायर कर दिया। समझ आए? ओके मैम। राइट। राइट फास्ट बच्चे। Yes, I'm done. Yes, beta. Now listen, बच्चे, question number 15 I have done here x into e power x square into dx. सपोज यहाँ पे दे के आपको पता चल रहा है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये रहा, सो आई हैव गिवन सब्स्टिट्यूशन x स्क्वायर इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करो 2x into dx इक्वल टू dt। व्हेन x टेंड्स टू लिमिट चेंज करना जरूरी है, व्हेन x टेंड्स टू 0 रखूंगी तो t टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 रखो। x की जहाँ से आपको लिमिट क्या 1, व्हेन x टेंड्स टू 1 यहाँ पे 1 रखो, t टेंड्स टू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो दैट इज ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स dt बाई 2, x इंटू डी एक्स की जहाँ पे dt बाई 2 और ये हो गया t e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t आएगा 1/2 इंटू e पावर t 0 to 1। सो आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे e पावर 1 माइनस e पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू e माइनस 1।
अब नेक्स्ट टेक इट दिस क्वेश्चन, आपको देख के पता चल रहा है डिग्री इक्वल है। ऑफ कोर्स क्या करने पड़ेगा, सबसे पहले डिवाइड करने पड़ेगा। बेटा इंटीग्रेशन रूल्स को बहुत प्रॉपर तरीका से अडॉप्ट करो, नहीं है तो ये 5 को बाहर लेना, बेशक 5 को बाहर लो, आई डोंट एनी ऑब्जेक्शन। सो इसको इससे डिवाइड करोगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। नाउ माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 3। Now anyhow, have you done everybody better? Yes, no? Yes, ma'am. Yes. अब मैंने डिवाइड कर दिया, why I divided this numerator by denominator, you know the reason. So बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को याद करके करो। Now this can be written as I equal to integral 1 to 2 क्वेश्चन 5 मैंने I have taken out, 5 को डिवाइड नहीं किया, 5 बाहर रख लिया बेटा। क्वेश्चन था 1 प्लस रिमाइंडर the minus, that is 4x plus 3 the whole upon x square plus 4x plus 3 into dx। बेटा नाउ i इक्वल टू दिस हो जाएगा 5 इंटू ये तो हो जाएगा x हो जाएगा। ओके फाइन, i1 कर लोगे, i1 i2 करके करना है करो, वो आपका चॉइस है। ये तो हो जाएगा x हो जाएगा बेटा, लिमिट तो अप्लाई करने पड़ेगा 1 to 2 ओके फाइन, माइनस आई एम टेकिंग दिस पार्ट i1। ओके i1 को अलग से कर लेती हूँ। नाउ i इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा। सो ये होगा 1 माइनस क्या आ रहा है आपके पास i1। ओके फाइन, सो i1 हो चुका है, i1 को हमें इंटीग्रेट करना है। सो i1 इक्वल टू 4x इंटीग्रल 4x प्लस 3, आपका चॉइस लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में जाना चाहते हो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, पार्शियल में जाना चाहते हो बेशक पार्शियल में 3 है आपका x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, पार्शियल में जाना चाहते हो पार्शियल में जाओ, आपका चॉइस बेटर। नाउ दिस 4x प्लस 3 द होल अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 कैन बी पार्शिएटेड a अपॉन x प्लस 3 एंड देन प्लस b अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 1। इफ आई टेक द एलसीएम सो क्या आ जाएगा, सो दैट इज 4x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू a इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 1 प्लस b इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 3। Now if I compare coefficient x 4 equal to a plus b, that is equation number 1. If I compare both side constant 3 equal to a plus 3b, आपका चॉइस डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो माइनस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। सो माइनस 2b इक्वल टू 1 इम्प्लाइज b इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1/2। b का वैल्यू माइनस 1/2 हो तो यहाँ पे रखो, सो ये आ जाएगा, दैट इज दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 4 प्लस 1/2, सो दैट इज इक्वल टू 9/2। a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, therefore i1 इक्वल टू आई एम टेकिंग इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट आई हैव टेकन नाउ। सो ये का वैल्यू 9/2 इंटू इंटीग्रल क्या आ गया आपके पास dx अपॉन x प्लस 3 एंड देन प्लस b का वैल्यू था माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रल dx अपॉन यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। सो dx अपॉन क्या हो गया x प्लस 1 इंटीग्रेट करके फाइनली लिमिट अप्लाई करती हूँ log 3 log x प्लस 3 हो जाएगा। अब लिमिट रख रही हूँ, लिमिट क्या था आपके पास 1 to 2 एंड माइनस 1/2 इंटू लॉग क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे भी लिमिट रखो 1 to 2। नाउ दैट इज i1 इक्वल टू 9/2 इंटू सबसे पहले अपर लिमिट रखती हूँ x की जगह से 2 log 5, x की जगह से लोअर लिमिट रखूँ log 4, ये हो गया। और माइनस 1/2 इंटू इसमें अपर लिमिट रखूँ log 3 माइनस लोअर लिमिट रखूँ log 2। ओके, नाउ log m/n करना है तो करो, बेशक वो आपका चॉइस है बेटा, कितने सिंप्लीफाई कर सकते हो वो आपका चॉइस। log 5/4 माइनस 1/2 इंटू log 3/2, इसको भी log m/n कर सकती हूँ 1/2 को कॉमन निकाल के, छोड़ो यहाँ तक छोड़ दो। देयरफॉर i इक्वल टू आपके पास 5 इंटू 1 माइनस i1 ये रहा 9/2 log 5/4 एंड देन माइनस है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू log 3/2। बच्चे समझ आए? से यस नो? Yes, ma'am. बेटा नाउ सी दिस एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 16 आई हैव डन। क्वेश्चन नंबर 17 देखना बेटा, जस्ट ए मिनट, एवरीबडी लिसन टू मी। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है 10x और एक्स क्यूब का एक्स पावर 4/4 प्लस 2x अपर माइनस लोअर कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखना बेटा, 18 में माइनस को बाहर निकालो, माइनस को बाहर निकालोगे क्या आएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, किसका फॉर्मूला है बच्चे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, Cos 2x. cos x
हाफ एंगल आ गया बेटा cos x, cos 2x हो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बनेगा। सो ये cos x आएगा माइनस cos x, उसका इंटीग्रेशन माइनस बाहर है sin x आ जाएगा, अपर माइनस लोअर। और क्वेश्चन नंबर 19 जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 14 किया था सेम वे क्वेश्चन नंबर 19 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 देखना बेटा, x इंटू ई एक्स में बाई पार्ट्स अप्लाई करोगे। वंस अगेन बच्चे अच्छी तरह सुन लेना, x इंटू ई एक्स में बाई पार्ट्स अप्लाई करूँ और साइन पाई x बाई 4 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई x बाई 4 द होल अपॉन पाई बाई 4 आएगा। सो ये आपने आप कर लो। कोई प्रॉब्लम हो तो देन टेल मी। क्वेश्चन नंबर 21 सीधे फॉर्मूला tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 22 अगेन 1/a 9 को बाहर निकालो, ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वही 1/a tan इनवर्स x बाई a। कैन यू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बेटा? 7.9। Yes, ma'am. Please slow down. If you have any problem further, you can ask tomorrow better, no problem at all. Anyhow, so tomorrow 7.10 first I will complete, then I will give basic idea of properties of definite integral. Write down fast, hurry up.